Welcome you all again in today's session of gastroretentive drug delivery system. And today we are here to discuss about the various factors that affect the gastroretention of drug delivery system. Before the factors affecting, we will discuss the physiology and anatomy of the stomach. Now let's start the physiology of the stomach. The stomach is an organ with a capacity for storage and mixing. स्टमक का है ऑर्गन है जिसमें हम फूड मटेरियल को स्टोरेज करते हैं और वहां पे मिक्स होता है. द एंट्रम रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट. जो एंट्रम रीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ gastric content. Under the fasting conditions, the stomach is a collapsed bag with a residual volume of approximately 50 ml and contains a small amount of gastric fluid having pH 1 to 3 and air. फास्टिक कंडीशन में स्टमक कोलैप्स बैग की तरह है जिसकी रेसिडुअल वॉल्यूम की कैपेसिटी 50 ml है और जो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक फ्लूइड जिसका पीएच 1 से 3 के बीच में रहता है और साथ में एयर से फिल रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट. ए ट्यूब अबाउट 9 meters long that run through the middle of the body from the mouth to the anus that include throat, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, duodenum, jejunum, ileum and the large intestine. So this is the anatomy of GIT tract. इसमें करीब 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि मिडल ऑफ द बॉडी से रन होती है और माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है जिसमें फेरिंग्स होता है, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पार्ट्स होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट. द रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is to break down the complex molecules derived from the ingested food into small ones for the absorption into the blood or the lung. डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल होता है जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स होते हैं इंगेस्टेड फूड में उनको ब्रेक डाउन करना स्मॉल मोलिक्यूल्स में और इसके बाद वहाँ पे वह एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और लंग में. This process occurs in 5 main phases within defined region of the gastrointestinal system. यह प्रोसेस मेनली 5 फेज में कंप्लीट होती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के डिफरेंट रीजन्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट वन इज द इंजेक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द माउथ. देन फ्रेगमेंटेशन इट हैपन इन द माउथ एंड स्टमक. Digestion, it occurs in stomach and small intestine. Absorption, it occurs in small and large intestine, and then elimination of the waste product occurs by the large intestine. Anatomically, the stomach is divided into 3 regions: fundus, body, antrum और pylorus. एनाटॉमिकली स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलरस भी कह सकते हैं एंट्रम को. द प्रॉक्सिमल पार्ट मेड अप ऑफ फंडस एंड बॉडी एक्ट एज ए रिजर्वर फॉर अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स. जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें फंडस और बॉडी है जो कि रिजर्वर की तरह वर्क करता है अनडाइजेस्टेड फूड के लिए. वेयरएज the antrum is the main site for mixing motion and act as a pump for gastric emptying of the propelling action. और जो एंट्रम साइट है
इट इज द मेन साइट फॉर मिक्सिंग, और जो कि पंप की तरह वर्क करता है गैस्ट्रिक को एम्प्टी करने के लिए बाय प्रोपेलिंग एक्शन. The transit time of various part of the GIT, such as in stomach, it is transit time in hours. It is less than 1 hour for the fasting, and it is more than 3 hours for the feed person. And in a small intestine, it is around 3 to 4 hours transit time, or for the large intestine, it is about 20 to 30 hours. Or here is the various pH environment in the different part of the GIT. Stomach having the pH 1.5 to 3.5, duodenum having pH 5 to 7, jejunum 6 to 7, ileum 6 to 7.5, colon 5.5 to 7, and rectum has a pH 7. Now move towards the gastrointestinal dynamics. These are the 4 motility phases within the stomach during the fasting stage. इस 4 motility phase होती हैं fasting stage के दौरान स्टमक में. The dosage form should be capable of withstanding the housekeeping action of phase third. जो भी dosage form है वो withstand रहना चाहिए in the time of phase third. phase 1 30 to 60 minutes की है, phase 2 20 to 40 minutes की होता है जिसमें बाइल सिक्रेशन और म्यूकस डिस्चार्ज होता है. इन फेज 3 म्यूकस डिस्चार्ज होता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है. तो इस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में ये डोसेज फॉर्म कैपेबल होना चाहिए कि वो वहाँ पे विदस्टैंड रहे. 10 to 20 मिनट्स की फेज होती है और फेज 4 0 to 5 मिनट्स की होती है. तो ये 4 फेज होती हैं जो मोटिलिटी फेज होती हैं विद इन द स्टमक ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज. Now, requirements for the gastric retention. The dosage form must satisfy certain requirements. First, able to withstand the forces caused by peristaltic waves in the stomach and the constant contractions and grinding and churning mechanism. जो डोसेज फॉर्म है वो विदस्टैंड रहे जो भी फोर्स वहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं बाय द पेरिस्टाल्टिक वेव्स के द्वारा, जो भी कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रही है, चर्निंग्स हो रहा है, तो उस पर डोसेज फॉर्म विदस्टैंड रहना चाहिए. सेकेंड इज द रेजिस्ट प्री मैच्योर गैस्ट्रिक एम्पिटिंग. प्री मैच्योर गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को रजिस्ट करना चाहिए. और द डिवाइस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टमक विथ एज. और जो भी डिवाइस है उसको स्टमक से हम इजीली रिमूव कर पाए. So these are the requirement for gastric retentive drug delivery system. Now factor affecting the gastroretentive system. Various factor affect such as density, size, shape of the dosage form, single or multiple unit formulations, feed or unfeed state, nature of meals, frequency of feeds, gender, age, posture, and biological factors. So these are the various factors that affect gastroretentive system. Now we will discuss one by one. First one is the density of dosage form. Dosage form having the density lower than that of gastric fluid experience floating behavior and hence gastric retention. ऐसे डोसेज फॉर्म जिनकी डेंसिटी गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होती है वह फ्लोटिंग बिहेवियर शो करते हैं और गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम उनका बढ़ जाता है. ए डेंसिटी ऑफ लेस देन 1 ग्राम पर ml इज रिक्वायर्ड टू एक्जिबिट फ्लोटिंग प्रॉपर्टी. डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से कम होगी तो वह फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं. हाउएवर the floating tendency of dosage form usually decrease as a function of time. Generally जो floating tendency है
डोसेज फॉर्म की वह टाइम के साथ में कम होती जाती है। एज डोसेज फॉर्म get emerged into the fluids as a result of development of hydrodynamic equilibrium। जैसे ही डोसेज फॉर्म फ्लूइड में इमर्ज्ड होता है, वहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है और उसके बाद उसकी जो फ्लोटिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द शेप एंड साइज ऑफ द डोसेज फॉर्म। द मीन गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम ऑफ non-floating dosage form are highly variable and greatly dependent on their size and which may be large, medium or small units। जो मीन रेसिडेंस टाइम है नॉन फ्लोटिंग डोसेज फॉर्म का वह मेनली डिपेंड करता है उसकी साइज पर, और जो कि साइज लार्ज साइज का, मीडियम या स्मॉल यूनिट हो सकता है। इन मोस्ट केसेस द लार्जर द डोसेज फॉर्म the greater will be the gastric retention time, due to the larger size of dosage form would not allow this quickly pass through the pyloric antrum into the intestine। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी डोसेज फॉर्म की साइज होगी उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि लार्ज साइज होने के कारण यह पाइलोरिक एंट्रम से पास नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन में और वहां पर लंबे समय तक स्टमक में रह पाता है, उससे उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। रिंग शेप्ड एंड टेट्राहेड्रॉन शेप्ड डिवाइस हैव ए बेटर गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम एज कंपेयर्ड विद द अदर शेप्स। शेप की बात करें तो जिसमें रिंग शेप्ड है या टेट्राहेड्रॉन शेप है, ये ज़्यादा लंबे समय तक उनका रिटेंशन रहता है, उनका रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर शेप्स। Food intake and nature of the food. Food intake, the nature of the food, caloric content and the frequency of feeding have a profound effect on gastric retention of the dosage form। फूड कैसा ले रहे हैं, कैलोरी कंटेंट क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका भी बहुत सारा इफेक्ट होता है गैस्ट्रिक रिटेंशन ऑफ डोसेज फॉर्म के ऊपर। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूड इन द स्टमक influences the GRT of dosage form। फूड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है डोसेज फॉर्म के ऊपर रिटेंशन टाइम के ऊपर, कि वहाँ पे फूड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है गैस्ट्रिक रिटेंशन ऑफ डोसेज फॉर्म के ऊपर। यूजुअली द प्रेजेंस ऑफ फूड इंक्रीज द gastric retention time of dosage form and increases drug absorption by allowing it to stay at the absorption site for longer time। जनरली फूड अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम डोसेज फॉर्म का बढ़ जाता है, क्योंकि इट allow to stay the डोसेज फॉर्म एट द एब्जॉर्प्शन साइट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि यह इसके कारण डोसेज फॉर्म एब्जॉर्प्शन साइट पर लंबे समय तक के लिए वहां पर रुक पाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी वहां पे ज्यादा हो पाता है। इफेक्ट ऑफ जेंडर, पोस्चर एंड एज। जनरली फीमेल्स हैव स्लोवर गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग रेट्स देन द मेल। जनरली फीमेल्स का जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग रेट्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेल। The effect of posture does not have any significant difference in mean gastric retention time for individual in upright, ambulatory or supine state। जनरली पोस्चर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम के ऊपर। इन केस ऑफ एल्डरली पर्सन्स गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग इज द स्लो डाउन। एल्डर पर्सन की बात करें तो यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग रेट स्लो हो जाता है as compared to the adult person। Thank you all. We will discuss in the next session. Stay safe and healthy. Thank you.